اے خدا میرا انصاف کر اور ناپاک قوم کے مقابل میں میری وکالت کر، کیونکہ تو ہی میرا خدا ہے جو مجھے توانائی بخشتا ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح کا فضل اور پاک روح القدس کی فاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں عزیز بھائیوں بہنوں، دانش گل فیملی، سلیم گل فیملی، الشبہ عمران، مہوش عمران، تنویر اسلم فیملی، ماسٹر یونس نقاش فیملی، وجاہت عباس فیملی، نعمان جاوید فیملی۔ مسیح خدا میں عزیز بھائیوں بہنوں، روزوں کے 5 اتوار کی لطوریہ میں بھی شامل ہیں۔ روزوں کا موسم توبہ، تبدیلی اور ایمان کی مضبوطی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ روزوں کا 5واں اتوار یسوع مسیح کے صلیب پر دکھ سہنے کے متعلق ہمیں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسیح کے دکھوں کا تجربہ کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ ہمیں اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دن آنے والے ہیں۔ یہ خداوند کا فرمان ہے کہ وہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ یسوع خدا اور انسان کے درمیان ایک نیا عہد ہے۔ یسوع کے ہمارے دلوں میں آنے کے ساتھ خدا نے اپنی شریعت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شریعت کو ان کے دلوں میں لکھ کر ان کے اندر گہرائی میں ڈالوں گا، تب میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ عبادت کے لیے ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں۔ عزیزوں، ہم اپنی تمام کمی کمزوریاں اسی خداوند کے حضور میں رکھیں جس نے ہمیں بنایا اور پیدا کیا، جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آئے ہم سوال کرتے ہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہاری سرورش اور مقدس اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ خدا قادر مطلق باپ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے بیٹے نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، تو اپنے فضل سے ہماری مدد کر تاکہ ہم اسی کی طرح محبت رکھیں، تیز ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ چل کر زمینی سفر طے کر سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی ودانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ عہد باندھوں گا اور ان بے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ عزیزوں، ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ 31 باب 31 تا 34 آیات تک۔ دیکھو، یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا حالانکہ میں ان کا خاوند تھا۔ یوں خداوند کا فرمان ہے، لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا۔ یوں خداوند کا فرمان ہے، میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر
कर दूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे और कोई अपने हमवतन को तालीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से कहेगा कि खुदावंद को पहचान लो, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी ना याद करूंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज के ज़बूर का जमायती जवाब है, ऐ खुदावंद मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। ऐ खुदा अपने रहमते के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसम के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पार कर। ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरी बातों में डाल। अपने चेहरे से मुझे खारिज कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। अपनी निजात की शानदारी मुझे फिर इनायत कर और इस्तितादी रूह से मुझे मजबूत कर। मैं खताकार को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुलाएंगे। उसने फरमाबरदारी सीखी और अब्दी नजात का बारिश ठहरा। अजीजों, हम सब के लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पत्र इब्रानियों के नाम 5 बार 7वीं नाम आया। ऐ भाइयों, मसीह ने अपनी बशरियत के अयाम में जोर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की, जो उसे मौत में से बचा सकता था और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचे बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब
आपकी नजात का बायस ठहरा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तेरा कलाम है मेरी हमेशा धीमी राह। तेरा कलाम है मेरी हमेशा धीमी राह। तेरी शहादत तो मेरा दिल है खुश रहता। तेरी शहादत तो मेरा दिल है खुश रहता। चराग है मेरे ठहरा यही कलाम तेरा। चराग है मेरे ठहरा यही कलाम तेरा। अगर यूं का दाना जमीन में गिरकर मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद के नबी हो। उसका 12 बाब उसकी 20 आयत से हम सुनेंगे। उस वक्त जो ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें से कई गैर कौम थे। वो फैलमुस के पास आए जो जलील के बैते सदा का था और उससे जा करके कहा कि ऐ आका, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फैलमुस ने आकर इंद्रियास से कहा और फिर इंद्रियास और फैलमुस ने यीशु को खबर दी। यीशु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक यूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीफ करे, और जहां मैं हूं वही मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या करूं? ये कि ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इस वक्त से इस घड़ी तक पहुंचा। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा। बस हजूम खड़ा सुन रहा था। वो कहने लगे कि बादल गरजा, मगर और कहते थे कोई फरिश्ता उससे बोला है। यीशु ने जवाब में कहा, यह आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है
اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری ہدایت مٹائی جائے۔ مہربان قدوس خدا میرے ناپاک ہونٹوں کو اپنے پاک روح سے مسح کر میرے دل کی تاریکی کو اپنے جلالی نور کی کرنوں سے منور کر دے تاکہ تیرے پاک اور زندہ کلام کو بیان کرنے کے لائق ٹھہروں، مسیح خدا کے وسیلے سے آمین۔ مسیح خدا میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج روزوں کے 5ویں اتوار کی دوریا میں ہم سب شامل ہیں اور آج کی تلاوتیں ہمیں اس بات کے لیے آگاہی دیتی اور تیار کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے آپ کو یسوع المسیح کے لیے تیار کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی جو ارمیا نبی کے معرفت ہم نے سنی، خداوند اسرائیل کو بحالی کی امید کا پیغام دیتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا اور نیا عہد لوگوں کے دلوں پر لکھا جائے گا۔ اور آج کی دوسری تلاوت بھی جو خدا کے زندہ کلام میں سے مقدس پالوس رسول کے خاطر عبرانیوں کے نام اس کے 5 باب میں سے سنی، میرے اور آپ کے لیے بچ لینا ہے کہ یسوع المسیح نے اپنی بشریت کے ایام میں زور زور سے آنسو بہا کر اپنی التجائیں اور دعائیں اپنے باپ کے سامنے پیش کی جو اسے موت کے منہ سے بچا سکتا تھا، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ اس کے برعکس کلام سنانے والا ہو یا سننے والا ہو، جب تک ہم اینٹ کا جواب پتھر نہ دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یسوع المسیح کی فرما برداری ہمیں سکھاتی ہے، روزہ دعا کے یہ ببرکت ایام ہمیں پشیمان رہنا اور فرما بردار رہنا سکھاتے ہیں۔ یہی نافرمانی جب نینوا کے لوگوں میں تھی، یونس نبی نے جا کر جو ہاتھ کا ظلم اور بدی 2 بڑے گناہ ان میں پائے جاتے تھے، خدا کے بدلے یونس نبی نے جا کر نینوا کے لوگوں کو خدا کی آواز سنائی جو آج ہم سب سن رہے ہیں۔ نینوا کے لوگوں 40 دن کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا، اور لکھا ہے تب نینوا کے لوگ ایمان لائے کن پر؟ خدا کے کلام پر، اور جب خدا کے کلام پر وہ ایمان لائے تو وہ بدل گئے، ان کے رویے، ان کا کردار، ان کا مزاج بدل گیا۔ بادشاہ کی طرف سے نیچے اتر آیا، روزے کی منادی کا اعلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی رعایا کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہے، سب نے ٹاٹ جوڑے ہیں، روزے کا اعلان کیا گیا ہے، اور بادشاہ اور سب رعایا نے سر میں خاک ڈالی ہے اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ٹیلر کراس بتاتے ہیں کہ نینوا کا علاقہ انہیں دیکھنے کو موقع ملا تو آج بھی نینوا کے لوگوں کا وہ ماتم پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جس طرح وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوئے، وہ آج بھی دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اور جب خداوند نے یہ حالت دیکھی کہ نینوا کے لوگ اپنے ہاتھ کا ظلم اور بدی سے باز آئے ہیں، تو خدا نے اپنے قہر کو نازل نہ کیا بلکہ وہ باز آیا، کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی اور عذاب نازل آنے سے باز رہتا ہے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر کوئی بچہ گندگی کر دے تو بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ بچے سے گندگی کو جلدی سے صاف کرتی ہیں، اور یہی میرا اور آپ کو خدا میرے اور آپ سے چاہتا ہے، کیونکہ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے اور گناہ گار سے پیار کرتا ہے۔ کئی بار خدا کا خادم فادر جیمز چمون کہتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر کہ وہ شفا کے لیے خدا کو ڈھونڈتے ہیں، نجات کے لیے، رہائی کے لیے بارے پھرتے ہیں۔ نجات، رہائی، شفا کا خدا مجھے اور آپ کو ڈھونڈتا ہے، جو کہتا ہے
से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा बोझ उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और मेरा जुबा मुलायम है। मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोख्त हूँ। और यही दिल की हलीमी और फरोख्ती आज की इतलात में मुझे और आपको नजर आती है। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखी। इब्ने आदम नाफरमान होकर खुदा के जलाल से महरूम है। आदम खुदा के जलाल से महरूम है, और इब्ने आदम यीशु मसीह बाप की फर्माबरदारी सिखाता है। पहली बार जब वो यरदन में इस्तवाक पाता है तो बाप की क्या आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा महबूब जिससे मैं खुश हूँ, फर्माबरदारी की आला मिसाल। फिर लाजर की कब्र पर भी यीशु मसीह जाकर फरमाते हैं, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरी सुन ली, क्योंकि मैं जानता हूँ तो हमेशा मेरी सुनता है। और कहा लाजर कब्र से बाहर निकला, और लाजर कब्र से बाहर निकला है। और गसमनी बाग में भी यीशु मसीह जान करने की हालत में दुआ कर रहे हैं, जान करने की हालत में दुआ कर रहे हैं, और उनका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदें बनकर बह रहा है। और रब मुबारक खोले, कहा बाप अगर हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। फर्माबरदारी की आला मिसाल अजीज भाइयों और बहनों प्यारे बच्चों हमें नजर आती है। और फिर जब हम शरीर पर देखते हैं, सब जान करने की हालत में तवज्जो तलबा 365 जख्म बदन पर, चेहरा लहूलुहान है, हर तरफ ताने देने वाले जोर शोर से अपनी बातें जारी व सारी रखे हैं। लेकिन यीशु मसीह लब मुबारक खोलते हैं तो क्या कहते हैं, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर यीशु मसीह के पास, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, फर्माबरदारी की कामल मिसाल मेरे और आपके सामने है। आज वो फर्माबरदारी क्या हमारे खानदान में मौजूद है, हमारे दिलों में मौजूद है? एक घर में रहते हुए रिश्ते नातों में दरारें हैं, भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, माँ बेटी के साथ। यीशु की फर्माबरदारी हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती। नाम के मसीह तो हैं, मगर अजीज भाइयों और बहनों, एक दरख्त अपने फल से और अनुसार अपने किरदार से पहचाना जाता है। जो कोई मेरी पैरवी करना चाहे, मेरी तकीद करे। और यीशु मसीह ने कहा मैं खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। और अजीज भाइयों और बहनों, खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि पाँव धोने की रस्म जो पाक जुमेरात को अदा की जाएगी, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोकर एक आला मिसाल मेरे और आपके सामने पेश की। आज के दिन मुकद्दस की तिलावत हमें ध्यानों ज्ञान का मौका प्राप्त करती है कि खुदा अपने ऐब को हमारे दिलों में लिखता है, ताकि हम भी जान देने तक फर्माबरदार रहें। और जिस तरह बेटे ने बावजूद बेटा होने के दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखी, याद रखें एक मसीह का सफर गसमनी बाग से शुरू होकर कलवरी तक जाता है। और गसमनी बाग से शुरू होने वाली कहानी अजीज भाइयों और बहनों दुखों, आजमाइश और मुश्किलों से भरी है, मगर यीशु मसीह ने दुखों आजमाइशों में साबित कदम रहकर किसका जलाल ज़ाहिर किया? अपने बाप का जलाल ज़ाहिर किया। आज जितने हम खुदा के घर में बैठे हैं, रोजा दुआ की ये बरकत अय्याम में सिखाती हैं, उसकी पैरवी करना, उसके नक्शे कदम पर चलना। जो यीशु मसीह ने फर्माबरदारी मुझे और आपको सिखाई, उस फर्माबरदारी को हम अपने से शुरू करें, अपने खानदान में बांटे, दूसरों में बांटे, ताकि इब्लीस की नफरत और हसद हमारी जिंदगी हमारे खानदानों से जाती रहे। हमारे किरदार किसी के लिए ठोकर का बायस न बने, बल्कि हमारे किरदार एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। रोजा दुआ के ये मुकद्दस अय्याम जो हम यीशु मसीह के दुखों में शरीक हो रहे हैं, ये दुख जो असल में मेरे और आपके थे, हमारे दुखों के लिए वो एक ही बार कुर्बान हुआ। आज मुझे और आपको अपने रवैयों पर गौर करने की जरूरत है, अपने दिलों को परखने और जांचने की जरूरत है। याद रखें, जिस्मानी नियत मौत है, रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। जिस्मानी नियत में बंदा वो करता है जो उसकी मर्जी होती है, और रूहानी नियत में बंदा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो खुदा का रूह से हिदायत करता है वो करता है। जिस्मानी नियत में शाऊल है और मसीहों का
राह पर जा रहा है, रास्ते में खुदा का नूर चमका, सारा घमंड सारा गुरूर चला गया और वही शाऊल फिर पौलुस बन गया। और जब गमालियल को खुदावंद हिदायत करता है कि तेरे पास वो आएगा और वो तू उस पर दुआ करना ताकि वो बिनाई पाए, और जब उसने दुआ की, उसने बिनाई पाई, तो वो शाऊल से क्या बन गया? मेरी बहनों बेटियों भाइयों, क्या बन गया? पौलुस बन गया। और फिर क्या कहता है? खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं अलावा यीशु और उसकी सलीब के। जितनी चीजें मेरे नफा की थी मैंने मसीह की खातिर उन्हें नुकसान समझ लिया। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्या हम जो बपतिस्मा याफ्ता मसीह हैं वो मसीह मेरे और आपकी जिंदगी में जिंदा है? पोप जॉन पॉल II जिन्हें मुकद्दस का दर्जा भी दिया गया, फरमाते हैं हर एक बपतिस्मा याफ्ता रसूल है, रसालती और बिशारती काम हम सब पर फर्ज है। आए आज के जिंदा कलाम की रोशनी में हम परखें और जांचें। रोजों के 5 लुतुरियाई इबादत में आज हम सब शामिल हैं कि जो कोई मेरी पैरवी करना चाहे, जो कोई यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना चाहे, तो यीशु की सिर्फ 3 चीजें हमें सिखाती है। पहला फरमाबरदारी, और जब फरमाबरदारी हमारे अंदर है तो फिर कुर्बानी का जज्बा भी खुद ब खुद हमारे अंदर आएगा और फिर यीशु की मोहब्बत हमारी जिंदगियों से ज्यादा होगी। आए आज उसकी फरमाबरदारी को हम कबूल करें जो बाप की बेटा होने के उसने तकमील तक पहुंचकर हम सबको सिखाई, और हम यीशु मसीह की तकरीर करते हुए उसके नक्शे कदम पर चले। कभी भी जिंदगी में रहते हुए पौलुस रसूल कहता है बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानो चलो। याद रखें जब हमारी गुनाहगार जिंदगी होती है तो हम चढ़ाई से उतर रहे होते हैं और जल्दी से भी स्पीड होती है, और जब हम खुदा की तरफ जाते हैं तो ऐसे ऊंचाई का रास्ता होता है और इंतहाई मुश्किल है और उसके लिए हमें झुकना पड़ता है, और यही झुकना आज इस मौजूदा दौर में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है। मसीहत में मुआफ करना और माफी देना लाजमी अमल है। आए रोजा दुआ की बरकत अय्याम में हम अपनी कलीसिया को, अपने दिलों को, अपने खानदानों को मोहब्बत का वो गवारा बनाए, एक दूसरे को मुआफ करके, एक दूसरे को कबूल करके यीशु की पैरवी करें, उसके नक्शे कदम पर चलें, अपनी खुदी का इनकार करें और शाऊल से पौलुस की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि आज का जिंदा कलाम हमारी सोचों, हमारे रवैयों, हमारे ख्यालों को तब्दील करे। आज से 17 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ एंजल में हमें एक ट्रेनिंग का मौका मिला, जिसके लिए हमारे इलाके के बुजुर्ग जो उस वक्त चर्च की मीटिंग में थे, बुजुर्ग सनम सिंह, बुजुर्ग बूटा जोना, नादर सुंदर, बुजुर्ग सादत सुफी और दूसरे बुजुर्ग, जिनकी काबत से हम 2 लोग यहाँ से गए और आधे घंटे का मौका दिया गया कि आप लोग दुआ में ठहरे और सबने दुआई देनी है। उसके बाद जब दुआई का वक्त आया, तीसरी बार पर हमने वापस जाना था। पहली बार हो गई कुछ नहीं, दूसरी बार हो कुछ नहीं, और तीसरी बार होते खुदा के रूप में दिखाया कि मैं सामने जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एकदम एक पत्थर आया है, और जैसे मैं लगा करता हूँ वो पत्थर बढ़ते बढ़ते बढ़ गया और जहां तक नजर जाती है वो पहाड़ बन गया। मैं कह रहा हूँ खुदा मैंने इस रास्ते से जाना था, और 3 बार ये अमल हुआ। और जब गवाही दी गई सिस्टर ने समझाया कि याद रखें जितना छोटा पत्थर बड़ा पहाड़ बन गया। जब खुदा तुम्हें बरकत देता है अपनी साथ आजमाइशें भी लाता है, याद रखें कभी ना घबराएं। वो पहाड़ जिस तरह बैठ गया आजमाइशें भी इस तरह बैठ जाती हैं। जब हम खुदा में साबित कदम रहते हैं, खुदा की पैरवी करते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो फिर हम भी पर उसके साथ मिलकर यही कहते हैं अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और खुदा न करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं अलावा यीशु और उसकी सलीब के। आज खुदा मुझे और आपको बरकत दे। हम भी रोजा दुआ की बरकत अय्याम में जितने ग्रुप्स हैं, जितने ईमानदार मोमिन भाई बहन बेटे बेटियां बैठे हैं, हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे को मुआफ करें, ताकि मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों में कामल हो। उसकी फरमाबरदारी से हम बढ़कर एक दूसरे के लिए कुर्बान होना सीखें, ताकि यीशु की पाक मोहब्बत हमारे दिलों में कायम रहे और आने वाले दिनों में हम पाक करते लें और इसे बादशाह के लिए अपने दिलों को तैयार करें। याद रखें ठोकरों का लगना जरूर है, मगर अफसोस उस शख्स पर जिसके सबब से ठोकर लगे। हम आज खुदा के घर में याद करें कि खुदावंद
आज से मैं तेरे नक्शे कदम पर चलूंगा और कभी भी मेरा किरदार किसी के लिए ठोकर का बायस न बने। खुदा हम सबको ऐसा करने का बड़ा भारी फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस बरस कुचैन में उठाया, मसलूब हुआ, मार गया, दफन किया गया, बर्तन में उठा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा मालिक अपनी मां की दाहिने हाथ पर बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ कुदरत पर पाक कैथोलिक चीज किया, मकसदों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीतने और हमेशा के नसीब पर आमीन। अजीजों भी वक्त है कि हम अपनी दुआएं मांगना चाहते हैं, हम को पेश करें, दुआ करें पापा आज़म के लिए। खुदा बाप उन्हें अच्छी सेहत और सलामती अता करे, ताकि खुदा को तेरी खिदमत की रिसालत इसी मोहब्बत और सलामती भी करते हुए तेरे ही जलाल में बढ़ते रहे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं खुदा के तमाम खातून और खातून के लिए, कार्डिनल्स के लिए, बिशप साहबान के लिए, फादर साहबान के लिए, सिस्टर साहबान के लिए, बशरा अंजील के लिए, और तमाम ईमानदार कलीसिया के लिए खुदावंद हमेशा अपनी बरकत और अपनी शफ़क़त को रखे। हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में रूह कुदस की क़ुव्वत और उसके जलाल में बढ़ते जाएं। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी क़ुव्वत के सरचश्मे जो दुआएं तेरे हुज़ूर में बड़े ईमान और मोहब्बत से पेश की गई, उन्हें सुन और कबूल फरमा। उनका असर हमारी जिंदगियों में हमेशा कायम रहे। ये दुआ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। नज़रानों पर दुआ। कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, तूने अपने बंदों को मसीह की मान के असूलों पर चलने की तलकीन की है, तो हमें अपने रूह कुदस की खास बरकत बख्शता है। खुदावंदे, हम ये हदीये निशाने तेरे पास लाए, इन पर तेरी नजर और खुदावंद इनका असर हमारी जिंदगी में अपनी मोहब्बत और अपने फजल से बढ़ता है, जिससे हम तेरी इस ताकत के लायक फल ला सके। ये सब कुछ मांगते मसीह खुदा के वसीला से, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्श है, हम हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि वो तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। आमीन। कि मैं अपनी सलामती में ले जाता हूँ, तुम्हारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर ज़िक्र उससे वो सलामती का बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ, आपके साथ भी। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, हमें सलामती कर। ऐसी तो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, बारिक है सब
इस बड़े की ज़ियाफत में बड़ा है आए उनसे परमिशन हम अपने सर को झुकाएं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। हम अपने सर को झुकाएं और खुदा से अकादमुत खुदा, हम तेरे बेटे के पाक बदन पाखू में शरीक हुए अनायत कर हमेशा उसके सरारी बदन के अज़ा में शुमार किए जाए, ताकि हम तेरी उस इलाही मोहब्बत और फजल से मामूल होते हुए तेरी बादशाह में दाखिल किए जाए। दुआ मांगते हैं मसीह हमारे खुदा के वसीला से। खुदा कादिर के बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सबके साथ हो। बात करते हुए अमर खुदा का शुक्र।